بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ پہلے ابا نے شاہ عامل کی خدمت کی تھی اور اب جوان ہونے کے بعد میں ان کی خدمت کر رہا تھا۔ وہ بہت بڑے عامل تھے، لیکن میری ذہانت دیکھ کر کہنے لگے ایک دن تم بھی میری طرح بہت بڑے عامل بن جاؤ گے۔ لیکن مجھے ان چیزوں میں دلچسپی نہیں تھی۔ ابا کے مجبور کرنے پر میں ان کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، کیونکہ ان کی وجہ سے ہی ہمارے گھر کے حالات اچھے ہوئے تھے۔ یہ ابا کی ہر طرح سے بہت مدد کرتے تھے۔ اب وہ بوڑھے ہو گئے تھے، لیکن مجھے ان کے آستانے پر بھیج دیا گیا۔ ہر وقت میں ایک مرید کی صورت میں شاہ عامل کے ساتھ رہتا تھا، لیکن آج وہ رات کے 12 بجے مجھے ایک عجیب و غریب سی جگہ پر لے کر گئے۔ وہ ایک خالی اور ویران سا گھر تھا۔ مجھے یہاں بہت خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن شاہ عامل بہت پراسرار لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، لال سرخ بڑی بڑی آنکھیں رات کے اندھیرے میں خوب ڈراؤنی دکھائی دے رہی تھیں۔ اس نے جیسے ہی اس کھنڈر نما گھر کا ایک کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر سے ایک زوردار چیخ کی آواز آئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی تکلیف میں ہو۔ یہ آواز سن کر میں سہم گیا۔ مجھے یوں ڈرتے دیکھ کر شاہ عامل غصے سے کہنے لگا، خبردار، جو ایسی مخلوق سے ڈرنے کی کوشش کی، میں انہیں اپنے تابع کرنا چاہتا ہوں، اس لیے چپ چاپ میرے پیچھے کھڑے رہو۔ اب وہ نیچے زمین پر بیٹھ گیا تھا، آنکھیں بند کر کے نہ جانے ایسا کیا خطرناک عمل کیا کہ اچانک ہی کمرے میں دھواں بھر گیا۔ مجھ سے سانس لینا بھی دشوار ہو گیا تھا، لیکن اس خطرناک دھوئیں میں شاہ عامل کا عمل جاری رہا تھا۔ پھر وہ بلند آواز سے چیخا اور کہنے لگا، بھلے ہی تم مجھے کتنا ہی ڈرانے کی کوشش کرو، لیکن آج میں جس مقصد کے لیے یہاں آیا ہوں وہ پورا کر کے ہی جاؤں گا۔ تھوڑی ہی دیر بعد دھوئیں سے منظر اس قدر دھندلا ہو گیا کہ مجھے سامنے کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہا تھا، لیکن ایک دم سے ہی شاہ عامل کے آگے رکھی ہوئی ہنڈیا زوردار انداز میں ہلی تھی۔ جیسے ہی ایک دھواں سا اڑ کر اس ہنڈیا کے اندر گیا تو عامل نے فٹافٹ اس کے اوپر لال رنگ کا کپڑا باندھ دیا تھا۔ آج اس کے چہرے پر بے تحاشا خوشی تھی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ایسے لگا جیسے ہم نے کسی مخلوق کو تکلیف دی ہے۔ اب میں بوجھل قدموں کے ساتھ یہاں عامل کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، یہ جانے بنا کہ میری آنے والی زندگی میں کیا کیا مشکلات ہونے والی ہیں۔ میرا نام تنویر ہے۔ میرا تعلق ایک متوسط طبقے کے گھرانے سے تھا۔ ہمارا خاندان شروع سے ہی عامل اور عملیات وغیرہ پر بہت یقین رکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارے پورے خاندان کے لوگ ان کے مرید تھے۔ شروع سے ہی ایک بہت بڑے عامل کے خاندان کے ہم مرید تھے اور میرے ابا بھی ان کے مرید تھے، لیکن اب وہ بوڑھے ہو گئے تو میں گھر کا سب سے بڑا بیٹا تھا، اس لیے میرے کندھوں پر اس عامل کی خدمت کرنے کی ذمہ داری آ گئی تھی۔ اس کا نام شاہ عامل تھا اور اب میں اس کے آستانے پر 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہتا تھا۔ میرا گھر ایک دور گاؤں میں تھا، لیکن وہ عامل ہر مہینے مجھے ایک اچھی خاصی موٹی رقم دیتا گھر بھجوانے کے لیے، کیونکہ انہی عاملوں کی وجہ سے ہمارے گھر چلتے تھے اور ہم ان کے مرید بن جاتے تھے، تو یہ ہمیں پیسوں سے مالا مال کر دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ابا نے مجھے خاص طور پر سمجھا کر بھیجا تھا کہ کبھی شاہ عامل کو ناراض نہیں کرنا اور جو وہ کہے اس کی ہاں میں ہاں ملانا، بس اسے ہر وقت خوش رکھنے کی کوشش کرنا، دیکھنا تیرے نصیب کیسے بدل جائیں گے۔ مجھے ان باتوں سے کوفت ہوتی، کسی کی غلامی کرنا، اس کی جی حضوری کرنا مجھے یہ منظور نہیں تھا، لیکن میں ابا کا کہا ٹال بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ ابھی میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ مال و دولت اور نہ ہی کوئی اچھی تعلیم۔ خالی ہاتھ لیے میں شاہ عامل کے آستانے پر آیا تھا۔ میں ان پر کسی صورت بھی ظاہر نہ ہونے دیتا کہ مجھے ان کا یہ کام ٹھیک نہیں لگتا، اس لیے ہر وقت ان کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، لیکن اکثر ہی وہ آدھی راتوں کو جنگلوں میں خاک چھاننے کے لیے چلا جاتا اور ایسے میں بھی اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ اس کے جو باقی 2 مرید تھے وہ انتہائی بوڑھے ہو چکے تھے، جبکہ میں واحد نوجوان تھا۔ ایسے میں وہ مجھے ہی اپنے ساتھ رکھتا اور کہیں بھی ایسی جگہ پر جانا ہوتا تو میں اس کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا، لیکن مجھے اس بات پر خوف ہوتا کہ وہ اکثر ویران کھنڈروں، خوفناک جنگل اور پرانے قبرستانوں میں جایا کرتا تھا۔ میرا واسطہ آج سے پہلے کبھی ان چیزوں سے نہیں پڑا تھا، اس لیے میں اکثر گھبرا جاتا۔ ایسے میں شاہ عامل کی ناراضگی بچا تھی۔ وہ مجھ پر غصے کا اظہار کرتا اور کہتا کہ اتنے بڑے عامل کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی تمہارے دل میں بہادری پیدا نہیں ہوئی۔ اگر ہم ایسے ہی مخلوق سے خوف کھاتے رہے تو یہ ہم پر حاوی ہو جائیں گے، جو میں کسی صورت نہیں ہونے دوں گا۔ نہ جانے وہ مخلوق کو اپنے پاس قید کر کے کیا تسکین حاصل کرتے تھے۔
میں نے ابا کی زبان سے سنا تھا کہ اکثر جنات اور جن ذاتیاں ان کے بچے بھی ان کے موکل تھے۔ بڑے بڑے بزنس مین، امیر لوگ، سیاستدان ان سے اپنے خفیہ کام کروانے آتے تھے، پھر چاہے وہ کسی کو نقصان پہنچانا ہوتا یا پھر کسی کو نوکری سے نکلوانا ہوتا، کسی نہ کسی طرح سے عامل ان کے کام کر ہی دیتا تھا۔ لیکن اس نے کبھی مریدوں پر یہ راز ظاہر نہیں کیا تھا، حالانکہ ابا نے مجھے اچھی طرح سمجھایا تھا کہ تو شاہ عامل کے پاس رہے گا تو ان سے بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کرنا۔ یہ میں نے غلطی کی کہ میں ہمیشہ اس کا غلام بن کر رہا اور آج تک غلام ہوں۔ لیکن یہ جو شاہ عامل ہے، پہلے یہ ایک بہت بڑے عامل کا مرید تھا اور اس کے بعد یہ خود بھی عامل بن گیا۔ سارے عملیات سیکھ کر اس لیے تجھے بھی یہی کرنا ہے۔ ابا نہ جانے کیسی عجیب و غریب باتیں مجھے سمجھا رہے تھے، لیکن یہ ساری باتیں میرے سر سے گزر رہی تھیں۔ اب میں گاؤں سے سیدھا اس عامل کے آستانے پر آ گیا تھا، لیکن آج رات یہ عجیب و غریب خوفناک منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، جب اس نے کسی مخلوق کو اس ہنڈیا میں قید کیا تھا۔ اس ہنڈیا کو اس نے اچھی طرح سے چھپا کر رکھ دیا تھا تاکہ کسی کی نظر اس پر نہ پڑے۔ پھر دوسرے دن شاہ عامل کو کوئی بلانے آیا اور وہ اس کے ساتھ چلا گیا، جبکہ آستانے میں میں اکیلا ہی بیٹھا تھا۔ میں نے دیکھا یہاں کتابوں کا ایک ڈھیر تھا جو یہاں پر رکھا ہوا تھا۔ میں بھی وقت گزاری کے لیے ایک کتاب اٹھا کر پڑھنے لگا، لیکن جو بھی کتاب اٹھا رہا تھا وہ ساری علم و عملیات اور جنات کو قابو کرنے کے طریقے، رات کے وظیفے، چاندنی رات میں جنات کی موجودگی کا انکشاف، عجیب و غریب نام تھے ساری کتابوں کے۔ میں بیزار ہو گیا۔ پھر میں نے ایک کتاب کے ٹائٹل پر نظر ڈالی تو حیران رہ گیا، جن زادی کی ایک عامل سے محبت۔ اس کا تو ٹائٹل ہی بڑا انوکھا سا تھا۔ میں وہ کتاب اٹھا کر پڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد میں اس کہانی کے سحر میں کھو گیا تھا، کیونکہ کہانی ایک عامل اور جن زادی کی تھی جو عامل سے محبت کر بیٹھی تھی، لیکن عامل اس پر ظلم کرتا تھا اور وہ اس کا ظلم صرف اس کی محبت میں برداشت کر رہی تھی۔ مجھے یہ کہانی بڑی ہی عجیب لگی اور اس کہانی کو پڑھ کر مجھے دکھ محسوس ہونے لگا۔ ابھی میں پوری طرح سے اس کہانی کے سحر میں کھویا ہوا تھا کہ اچانک مجھے اپنے کان میں سرگوشی سی سنائی تھی، خدا کے لیے میری مدد کرو، مجھے بچاؤ، آخر مجھے قید کر کے تم کیا حاصل کر لو گے؟ یہ آواز بڑی ہی رسیلی اور پرکشش تھی۔ میں ایک دم سے ہی کتاب رکھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید یہ کتاب پڑھنے کی وجہ سے مجھے بلا وجہ سے یہ آوازیں محسوس ہو رہی ہیں، لیکن جب دوبارہ سے اچانک یہ دھیمی سی رونے کی آواز آئی تو میں چونک گیا تھا۔ آواز اس آستانے کے ایک حصے کی طرف سے آ رہی تھی جہاں پر پردہ لٹکایا ہوا تھا۔ وہ شاہ عامل کا حجرہ تھا جس میں وہ عبادت کیا کرتا تھا۔ اب میں وہاں جا بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہاں پر ہمارا جانا منع تھا۔ ان کی کئی ذاتی چیزیں وہاں پر موجود تھیں۔ ایسے میں اگر کوئی چیز چوری ہو جاتی تو الزام مجھ پر لگتا، اس لیے میں ان آوازوں سے گھبرا کر باہر آ گیا تھا۔ پھر دوسرے دن جیسے ہی شاہ جنات آستانے میں آئے تو میں نے انہیں بتا دیا کہ کل آستانے سے عجیب و غریب رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی لڑکی بین کر رہی ہو۔ یہ سن کر وہ بری طرح چونک گئے تھے، پھر بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگے، او تو اب اس کی اتنی ہمت کہ اب وہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے گی، لیکن میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ ایسا کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں شدید غصہ دکھائی دے رہا تھا۔ لیکن دوسری رات جب وہ اپنے گھر جا رہے تھے تب میں نے انہیں اسی لال ہنڈیا کو اپنے ساتھ گھر لے جاتے ہوئے دیکھا اور مجھے شک سا ہو گیا تھا۔ یقیناً کل آنے والی کسی جن زادی کی آواز جو بہت ہی مظلوم انداز میں چیخ رہی تھی وہ اسی کے اندر سے آ رہی تھی۔ نہ جانے اب شاہ عامل اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ پھر اس بات کو 2-3 دن گزر گئے۔ اچانک ایک دن شاہ عامل مجھے کہنے لگا کہ آج میرے گھر جاؤ اور گھر سے کچھ سامان لے کر آؤ، مجھے ان کی ضرورت ہے۔ میں جانتا تھا کہ ان کا گھر ایک پوش علاقے میں واقع تھا۔ وہ بہت ہی امیر تھے۔ ان کا ایک خوبصورت بنگلہ تھا۔ اب میں اسی کے سامنے کھڑا دروازے پر دستک دے رہا تھا، تبھی اس کی بیوی نے دروازہ کھولا۔ اس نے مجھے اندر آنے کو کہا تھا۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھیں بہت سوجی ہوئی تھیں، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ رات بھر روتی رہی ہو۔ اچھی خاصی خوبصورت عورت تھی۔ میں جیسے ہی وہ ضروری سامان لے کر مڑنے لگا تو اچانک ہی وہ لہرا کر زمین پر گر پڑی۔ میں اسے یوں زمین پر گرتے ہوئے دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ تبھی میں نے سہارا دے کر اسے اٹھایا اور اندر لے جا کر بیڈ پر لٹا دیا تھا۔
थोड़ी देर बाद उनको होश आया तो उनकी हालत बहुत अजीब थी। जब मैंने उनसे पूछा कि उनकी ऐसी तबीयत क्यों है तो वो रोते हुए कहने लगी, जब किस्मत ही खराब हो तो फिर मैं भला अपनी सेहत को क्यों दोष दूं? एक ऐसे इंसान से मेरी शादी हो गई जिससे औरतों में नहीं बल्कि जिन जातियों में दिलचस्पी है। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं उन्हें कहने लगा कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं, वो भी शाह आमिल के बारे में। तो वो कहने लगी, तुम्हारे लिए होगा वो शाह आमिल, मेरे लिए तो वो एक बदकिरदार इंसान है। तुम उसकी हकीकत नहीं जानते। वो बहुत ही मकरूर ज़हनियत का मालिक है। पहले से ही 3 जिनसातियां उसकी जिंदगी में शामिल है। अब वो चौथी जिनसाती से शादी करने वाला है। उन्हें कैद करके इस तहखाने में रख लेता है जहाँ से हर रोज मुझे उनकी चीखें सुनाई देती हैं। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। अब वो एक और जिनसाती को कैद करके लाया और उससे अनकरीब शादी करने वाला है। उसे इंसानी औरतों में नहीं बल्कि जिनसातियों में दिलचस्पी है और ये उसकी शुरू से आदत है। इसने तो मेरे सामने एक अजीब व गरीब इंकशाफ किया था। मैं गैरत से बुत बन गया था। फिर अचानक ही मुझे याद आया कि मुझे आस्ताने पर जाना है। शाह आमिल मेरा इंतजार कर रही होंगी। फिर जैसे ही मैं आस्ताने पर पहुंचा तो वो गुस्से से चीखते हुए कहने लगे, इतनी देर लगा दी, क्या कर रहे थे मेरे घर में? वो शक भरी नजरों से मुझे देख रहे थे। मैं घबरा कर कहने लगा, वो शाह साहब, आपकी बीवी की अचानक तबीयत खराब हो गई है और वो बेहोश हो गई थी। उन्होंने सर झटका और कहने लगे, ठीक है, ज्यादा तफसील झाड़ने की जरूरत नहीं। ये कहकर उन्होंने वो सारा सामान मेरे हाथ से ले लिया था। लेकिन न जाने क्यों आज पहली बार मुझे शाह आमिल से बेपनाह नफरत महसूस हो रही थी। मेरे कानों में किसी की रोती हुई आवाज आ रही थी, मुझे बचाओ, मेरा कसूर क्या है, मुझे क्यों कैद किया है? यकीनन वो एक जिनजादी थी जिसे शाह आमिल ने अपने पास कैद किया था और उसे अब अपने घर लेकर जा चुके थे। तो क्या वो उससे जबरदस्ती शादी करके उसे अपना मातहत बना लेंगे? मुझे ये जानकर बहुत दुख हो रहा था, जबकि उसकी बीवी का कहना था कि वो पहले भी 3 और जिनजातियों को अपना गुलाम बना चुका है उनसे शादी करके। लेकिन एक दिन मुझे शाह आमिल की बीवी का पैगाम वसूल हुआ। वो मुझे अपने बंगले पर बुला रही थी। मैंने खौफजदा नजरों से शाह आमिल को देखा। वो अपने आने वाले मेहमानों में मगन थे जो उनके लिए हजारों कीमती तोहफे लेकर आते और बदले में उनसे काम करवाते थे। उनकी बीवी का पैगाम मुझ तक पहुंच गया था, लेकिन अब मैं कैसे उनके पास जाऊं? उनके पास जाना नामुमकिन था। लेकिन मैंने देखा कि शाह आमिल कुछ लोगों के साथ गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे और मुझे आस्ताना बंद करने का कह दिया। अब मैं बेफिक्र होकर उनकी बीवी से मुलाकात के लिए जा सकता था। जैसे ही मैं उनके बंगले पर पहुंचा तो उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और रोते गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी, खुदा के लिए मेरी मदद करो। कल जब तुम मेरे पास आए थे तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे तुम मेरी मदद कर सकते हो। किसी तरह से भी उस जिनजादी को यहाँ से आज़ादी दिलवा दो, क्योंकि उसकी चीखों से मैं परेशान हो गई हूँ। मैं उसकी बात सुनकर घबरा गया और कहने लगा, ऐसा नामुमकिन है, आमिल मुझे जिंदा जमीन में दफन कर देगा। आप उसके गुस्से से शायद वाकिफ नहीं। तो वो कहने लगी कि मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन अगर उसने जिनजाती से शादी कर ली तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि मैं हामला हूँ और उससे मेरे होने वाले बच्चे की भी फिक्र नहीं है। ये सुनकर मैं हैरान रह गया कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अब मैंने धड़कते दिल के साथ उसकी बीवी से पूछा कि वो जिनजाती कहाँ पर कैद है। उसने मुझे तहखाने में जाने का इशारा किया था। मैं वहां जाते हुए बहुत घबरा रहा था, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि वहां पर और भी जिनजातियां होंगी जो न जाने मुझे देखते ही कहीं मुझ पर हमला न करते। इसी सोच ने मेरे अंदर शदीद खौफ पैदा कर दिया था। फिर मैंने हिम्मत करके अंदर जाने की तैयारी की। मेरी नजर उसी हंडिया पर पड़ी। उस शाह आमिल ने मेरे सामने उसमें उस जिनजादी को कैद किया था। जल्दी से मैंने वो हंडिया अपने पास रख ली और उसे लेकर बाहर आ गया। फिर मैंने उसकी बीवी से वादा लिया कि वो कभी ये राज शाह आमिल को नहीं बताएगी कि उस जिनजादी को आज़ाद करने वाला मैं हूँ। उसने मुझसे वादा कर लिया था। मैं नहीं जानता था कि उससे मुझे कहाँ रखना है, लेकिन मेरा इरादा था कि मैं इसे उसी घर में रख दूंगा जहाँ पर शाह आमिल ने इस जिनजादी को कैद किया था। रास्ता बड़ा ही खौफनाक था, लेकिन मैं भी तेज तेज कदमों से चलते हुए उसे पार कर लिया था। अगर किसी को मेरी वजह से आज़ादी मिल रही है तो मैं कभी भी इसे कैद में नहीं रखूंगा। यही सोचकर मैं उसे उस घर में ले आया था और फिर मैंने उसका ढक्कन खोल दिया।
जब मेरी आंखों ने अजीब हैरत अंगेज मंजर देखा था। अचानक ही उसमें से एक धुआं बनकर हवा में तहलील हो गया। ऐसे लग रहा था जैसे आज वो जिनजादी आजाद हो गई हो। अब मैं आस्ताने पर वापस आ गया था। दूसरी तरफ शाह जिन्नात जैसे ही दूसरे दिन आया, गैज़ो गज़ब से उसका चेहरा मामूर हो रहा था। आज वो इंतहाई गुस्से की कैफियत में लग रहे थे। मैं दिल ही दिल में डर रहा था। यकीनन आज तो उन्होंने अपनी बीवी को जरूर मारा पीटा होगा, क्योंकि उनका मकसद जो नाकाम हो गया था। दूसरे दिन उन्होंने अपने दोनों मुरीदों को घर जाने के लिए कह दिया, जबकि मुझे आस्ताने पर रोक लिया था। मैं अंदर से चोर की तरह उनसे मुंह छुपा रहा था, लेकिन वो बिल्कुल अनजान बने हुए थे। जैसे ही उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया तो मेरा पूरा जिस्म अनजाने खौफ से कांपने लगा। लेकिन जब उन्होंने कहा कि मुझे सब पता चल गया है, उस जिनसादी को आजाद करवाने में तुम्हारा हाथ है, तुमने मुझसे दुश्मनी मोल लेकर अच्छा नहीं किया, अब मैं तुम्हारा बहुत बुरा हश्र करूंगा। वो निहायत गज़बनाक हो रहे थे। लेकिन उन्हें कैसे पता चल गया? क्या उनकी बीवी ने उन्हें सब कुछ बता दिया था मेरे बारे में? मेरे चेहरे पर यह सवाल मौजूद था। तभी वो हंसते हुए कहने लगे, तुम क्या समझते हो, तुम इतनी बड़ी हरकत करोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा। तुम शायद ये बात नहीं जानते कि मेरे मुअक्कल जिन्नात की तादाद सैकड़ों में है और वो मुझे हर बात बता देती हैं। उन्होंने मुझे बता दिया है कि तुम ही वो चोर हो जिसने मेरे घर से उस जिनजादी को चुराकर आजाद किया। तुम खुद ही अपने लिए सजा मुंतखब कर लो। मैं उनके सामने सर झुकाकर खड़ा था। फिर मैंने उनके सामने हाथ जोड़े और कहने लगा, मुझे माफ कर दें शाह साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपकी बीवी की बातों में आ गया था, लेकिन वो मुझे किसी भी तरह माफ करने को तैयार नहीं थे। फिर उन्होंने मुझे एक भयानक सजा दी थी। वो मुझे अपने साथ एक पुराने कब्रिस्तान में लेकर जा रहे थे। वहां मौजूद एक वीरान घर में उन्होंने मुझे 3 रातें गुजारने के लिए कहा। मैं जानता था कि ये कब्रिस्तान शैतानी आसेब और आत्माओं की वजह से मशहूर है और यहाँ पर कोई कदम भी नहीं रखता। अगर यहाँ पर मुझे कैद कर दिया तो शायद मुझे बचाने के लिए कोई भी ना आए और मैं खौफ से अपनी जान दे दूं। लेकिन शाह आमिल बहुत बेरहम बन चुका था। उसने मुझ पर जरा भी तरस न खाया और उस वीरान घर में मुझे कैद कर दिया। मैं उस घर में कैद हो चुका था और यहाँ से फरार हासिल करने की कोशिश करनी, लेकिन ये तो एक भयानक कुएं की मानिंद दिखाई दे रहा था। ना तो इसमें कोई सुराख था और ना ही कोई रोशनदान। हाँ, एक लोहे का आहनी दरवाजा जरूर मौजूद था, लेकिन उसे बाहर से हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। अब ये दरवाजा जब ही खुलता जब शाह जिन्नात उसे खोल दे, क्योंकि उन्होंने इस पर एक खास अमल करके हमेशा के लिए इसे मुकफ्फिल कर दिया था। पहली रात तो खौफ के मारे मुझे नींद नहीं आई, लेकिन दूसरे दिन भूख, प्यास और खौफ ने मेरी हालत बुरी कर दी थी। मैं जोर जोर से दरवाजा बजाता, लेकिन उस दरवाजे को खोलने वाला कोई भी नहीं था। जब दूसरी रात प्यास और भूख की शिद्दत से मैं जमीन पर पड़ा तड़प रहा था, तभी अचानक ही उस दरवाजे को किसी ने खोला था। रोशनी का एक झमाका अंदर आया, लेकिन सामने खड़ी सफेद लिबास वाली खूबसूरत लड़की को देखकर मैं हैरान रह गया था। वो मेरे लिए खाना लेकर आई थी और साथ में पानी भी। मैं उसका एहसानमंद हो गया था। मैं उसका शुक्रिया अदा करने लग गया और पागलों की तरह सारा पानी पी गया। मुझे शदीद प्यास लग रही थी और भूख से जिस्म में गोया जान ही नहीं रही थी। लेकिन उस मेहरबान लड़की ने ये दरवाज़ा कैसे खोला? मैंने उससे जब ये बात पूछी तो वो बड़ी खूबसूरत आवाज़ में कहने लगी, उस कब्रिस्तान का एक गोरकन है, मैं उसकी बेटी हूँ। हम यहाँ पर थोड़ी दूर में रहते हैं। मैंने तुम्हारी चीखों की आवाज़ सुन ली थी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। लेकिन तुम्हें यहाँ पर किसने कैद किया है? इस घर में तो कोई भी आता जाता नहीं, क्योंकि सालों पहले इस घर के बारे में मशहूर था कि यहाँ एक खौफनाक जिनसात रहता है जिसने यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिरों को परेशान कर रखा था। फिर वो हैरत का इजहार करते हुए कहने लगी, तुम्हारा बच जाना किसी मौजज़े से कम नहीं, क्योंकि यहाँ से गुजरने वाले अक्सर ही दिल के दौरे के बायस मर जाते हैं। मैं आंखें फाड़े हैरत से उसकी बात सुन रहा था। वो बला की खूबसूरत लड़की थी, सलीके से सर पर दुपट्टा ओढ़े, खूबसूरत आंखें। वो मेरी मदद करने आई थी। मैं उसका शुक्रगुजार था। फिर मैंने उसके सामने हाथ जोड़े और कहने लगा, खुदा के लिए मुझे यहाँ से कहीं दूर ले जाओ जहाँ शाह आमिल मुझे ना देख सके, वरना वो मुझे जान से मार डालेगा। मैं उसका गुलाम हूँ, उसका मुरीद। लेकिन तुमने ऐसा क्या किया है? वो तुम्हारा दुश्मन क्यों बना? फिर मैंने उसे शुरू से लेकर सब बातें आखिर तक बता दी थी। तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, तुम एक नेक इंसान हो, तुमने किसी की मदद करके नेकी की,
इसलिए तुम्हारे साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं होगा। न जाने क्यों उससे इतना यकीन था। मैं उसकी बात पर हैरान रह गया था। फिर वो मुझे अपने साथ आने का कहने लगी। दूर ही दूर जंगल में भटकते हुए मैं उसके घर जा रहा था। न जाने उसका घर कितनी दूर है, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे मैं एक महफूज मकाम पर जा रहा हूँ। अब वो मुझे इस जगह से बहुत दूर ले आई थी। सामने ही एक घर था जिसमें रोशनी जल रही थी। वो कहने लगी, मैं इसी घर में रहती हूँ। मैं उस घर के अंदर आ गया। मैंने देखा सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा था। वो यकीनन उसका बाप था। अब उन दोनों बाप बेटी ने मुझे इस घर में तहफ्फुज़ दे दिया था, लेकिन मैं ये सोचने पर भी मजबूर था कि ये दोनों इस वीराने में क्यों रहते हैं। जब मैंने ये बात उस लड़की से पूछी तो वो अजीब अंदाज में मुस्कुराई थी। फिर कहने लगी, ये बात तुम जल्द जान जाओगे, बस 3 दिन गुजरने दो, उसके बाद सारी हकीकत तुम्हारे सामने आ जाएगी। मैं शाह आमिल की वजह से खौफज़दा था, कहीं वो अपने मुअक्कल जिन्नात की वजह से ये मालूम ना कर ले कि मैं यहाँ पर रहता हूँ और मैं वहाँ से भागकर यहाँ आ गया हूँ। अगर ऐसा हुआ तो वो दुश्मनी में इस हद तक पागल हो जाएगा कि मुझे जान से मारने से भी गुरेज नहीं करेगा। 3 दिन तक खौफ से मुंह छुपाए मैं उसी घर में बैठा रहा। वो दोनों बाप बेटी मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे। मैं उनका एहसानमंद था। वही मेरे लिए खाना लेकर आती। वो निहायत ही खूबसूरत थी। अक्सर जब वो मेरे पास आती तो मैं उससे देखता रह जाता। फिर 3-4 दिन खैर खैरियत से गुजर गए। ऐसे लग रहा था जैसे मेरे दिल से हर खौफ मिट गया हो। फिर मैं उससे कहने लगा कि आखिर मुझे वो राज बता ही दो कि तुम यहाँ इस वीराने में अपने बाप के साथ क्यों रहती हो और तुम्हारी जिंदगी यहाँ कैसे गुजर रही है। ये बात सुनकर वो मुस्कुराई। फिर कहने लगी, तुम सही कहते हो, इस वीराने में किसी इंसान का रहना नामुमकिन है, लेकिन हमारा रहना बड़ी हैरत की बात है। लेकिन हम तो बहुत आराम से यहाँ रहते हैं, सबकी नजरों से छुपकर, क्योंकि हम इंसान नहीं बल्कि जिन्नात हैं। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखा तो मैं खौफ से काम कर रह गया। ऐसे लग रहा था जैसे वो मुझसे कोई भयानक मजाक कर रही हो। फिर वो कहने लगी, दरअसल मैं एक जिनसाती हूँ। उस दिन तुमने मुझे बचाया, मेरी मदद की, और फिर मैंने भी तुम्हारी मदद करने का फैसला किया। अभी अगर तुम यहाँ छुपे हुए होते तो वो इस जालिम आमिल तुम्हें यहाँ से भी देख लेता, क्योंकि उसके पास जिन्नात हैं जिनकी मदद से वो हर बात पहले से ही जान लेता है। लेकिन तुम्हारे ऊपर मैंने एक ऐसा अमल किया जिसकी वजह से वो तुम्हारे बारे में कुछ जान ही न सका, और यूं उसके आए हुए जिन्नात वापस खाली हाथ लौट गए और तुम हमारे पास महफूज हो। दरअसल मैं भी उसी घर में रहती हूँ, क्योंकि मेरे बाबा जो एक जिनसात हैं वो आज से कई दिन पहले एक दूसरे कबीले में चले गए थे, क्योंकि उन्हें वहाँ किसी बहुत बड़े हमारे सरदार से मुलाकात करनी थी और मैं अकेले यहाँ पर रह रही थी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि उस आमिल की नज़र मुझ पर है। मैं हर रोज चांदनी रातों में उस झील किनारे जाया करती थी जिससे मुझे इश्क था। अक्सर मैं वहाँ नहाने जाती थी। फिर एक दिन जब मैं उस झील में नहा रही थी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई इंसान मुझे गौर से देख रहा हो। मैं जैसे ही झील के पानी से बाहर निकली तो हैरान रह गई। वो बड़ी बड़ी आंखों वाला शैतान से तामिल था जो मुझे देखकर अपनी नीयत खराब कर बैठा था। अब उससे मैं बचने के लिए पागलों की तरह भागकर उस एक वीराने घर में छुप गई, लेकिन उसने मुझे वहां पर कैद कर दिया और बुलंद आवाज से कहने लगा कि मैं जल्द ही तुम्हें लेने आऊंगा, तुम मेरी कैदी बन जाओगी और फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगा। लेकिन मैं उसके इरादों को नाकाम करना चाहती थी। मैं सिर्फ अपने बाप के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसने मेरे बाप के आने से पहले ही मुझे अपने पास कैद कर लिया और फिर तुमने मुझे आज़ादी दिलवाई। तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। मेरे बाबा भी एक ताकतवर जिन्नात है, बड़े बड़े जिन्नात उनका मुकाबला नहीं कर सकते। अब तुम बताओ तुम क्या चाहते हो, फिर मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं वैसे भी उस शाह आमिल से अपना बदला लेना चाहती हूँ, क्योंकि उसने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया। आज तक किसी की हिम्मत न हुई कि वो शाह जिन्नात की बेटी को कैद कर सके, और उसने मेरे बाबा के होते हुए मुझे अपनी कैद में रखा। मेरे बाबा चाहते तो उससे इसी वक्त बदला ले सकते थे, लेकिन ऐसा करने से मैंने उन्हें मना किया कि मैं अपना बदला खुद लूंगी। इसलिए मैं काफी हद तक मजबूत हो चुकी हूँ। मैं दिल ही दिल में उदास हो रहा था कि ये खूबसूरत लड़की एक जिनसाती है, हालांकि मैं तो इससे अपनी जिंदगी में शामिल करने का सोच रहा था। फिर मैं उससे कहने लगा कि अब मेरा कोई मुस्तकबिल नहीं। शाह आमिल मुझे कभी भी अपने पास मुरीद का काम नहीं देगा, इसलिए मैं भी एक आमिल बनना चाहता हूँ। ये मेरे बाबा की ख्वाहिश है। नजरें झुकाकर मैंने उससे अपने बाप की ख्वाहिश बता दी थी, तो वो कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हें आमिल बनाकर रहूंगी। आज से एक नई मोहब्बत की कहानी का आगाज होगा।
मेरी और तुम्हारी मोहब्बत की कहानी जो एक जिनसादी और आमिल की होगी। मैं हैरत से उसे देख रहा था तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, हाँ ये सच है, क्योंकि जब तुमने मुझे आज़ादी दिलवाई तो तब से ही मुझे तुमसे इश्क हो गया था। मैं ये सोचती कि कोई इंसान इस कदर हमदर्द कैसे हो सकता है कि सारे जमाने की दुश्मनी मोल लेकर एक नेकी का काम करे, और तुमने मेरा दिल जीत लिया। आज से मैं तुम्हें बहुत दूर अपने साथ ले जाऊंगी, उस जजीरे पर जहाँ पर हमारे जिन्नात कबीले के बड़े बड़े आमिल अमलियात सीखते हैं। मैं तुम्हें वहाँ एक आमिल से मिलवाऊंगी। उनके साथ कई साल गुजारने के बाद तुम एक बहुत बड़े आमिल बन जाओगे। शहर में तुम्हें कोई भी पहचान नहीं सकेगा। फिर तुम उस शाह आमिल से बदला लेना जिसने मेरे साथ और तुम्हारे साथ ये सब किया। मैं उसकी बात सुनकर खुश हो गया था। फिर मैंने उसकी बात मानने का फैसला किया। अब हम दोनों बहुत दूर जा रहे थे। उसके बाप शाह जिन्नात से इजाजत लेकर यूं वो जिनसादी मुझे एक जजीरे पर ले आई थी। मैंने देखा यहाँ का माहौल बहुत ही हैबतनाक और पुरस्कार था। हर तरफ दिए जल रहे थे। एक खंडर रुमा घर में मेरे ही जैसे कई लोग बैठे थे। मैं उन्हें देखकर हैरत ज़दा रह गया कि ये लोग भी आमिल बनने के लिए आए हैं। लेकिन उस जिनसादी ने कहा कि ये इंसान नहीं बल्कि ये सब जिन्नात हैं और तुम यहाँ पर वाहिद इंसान हो, क्योंकि यहाँ पर इंसानों को आने की इजाज़त नहीं है। खसूसी तौर पर ये वीरान जजीरा जिन्नात के लिए मुख्तस किया गया है। फिर उसने मेरी मुलाकात एक आमिल जिनसात से करवाई जो बहुत ज़्यादा उम्र का था। उसकी सफ़ेद आंखें, सफ़ेद बाल और सफ़ेद चेहरा जो बहुत नूरानी लग रहा था। चांद की रोशनी सीधी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे चांद हमसे थोड़े ही फासले पर हो, कोई हाथ बढ़ाकर उसे छू ले। यूं मैं रात को उस आमिल जिनसात से अमलियात सीखता और दिन में वो जिनसादी मुझे अपने साथ ले जाती अपनी दुनिया की सैर करवाने के लिए। उसकी दुनिया बड़ी अनोखी और दिलचस्प थी। यहाँ आकर मुझे नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिला था। बड़े बड़े जिन्नात से मैंने मुलाकात की। जब उन्हें पता चला कि मैं किसी आमिल का शागिर्द रहा हूँ तो सब हैरान हो रहे थे कि ये दूसरी दुनिया से आया हुआ इंसान एक आमिल बनना चाहता है। लेकिन मैंने उस जिनसात आमिल से वादा किया था कि मैं ऐसा आमिल नहीं बनूंगा जो किसी मखलूक को अपने पास कैद करके रखे और उनसे अपने मतलब के काम करवाए। मैं सिर्फ लोगों की भलाई के लिए काम करूंगा, उनकी मदद करना चाहता हूँ। मेरा जज्बा देखकर वो जिनसात आमिल बहुत खुश हुआ था। फिर एक दिन वो जिनसाती मुझे अपने जिन्नात के बाग में ले आई थी। मैंने देखा यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत फल और फूल सजे हुए थे। यहाँ का मंजर दिलकश था, इसलिए मेरी नज़र एक खूबसूरत गुलाब पर पड़ी। बेइख्तियार मैंने वो गुलाब तोड़कर उस जिनसाती को दे दिया, लेकिन अचानक ही उसने रोना शुरू कर दिया। वो खुद फूट फूट कर रो रही थी। मैं उसके रोने पर घबरा गया तो वो कहने लगी, इस बाग से फूल हमेशा वही तोड़ सकता है जो किसी जिनसाती का शौहर हो, लेकिन तुम मेरे शौहर नहीं हो। लेकिन हमारे दरमियान अब ये रिश्ता कायम हो चुका है। मैं पहले भी तुमसे मोहब्बत करती थी, लेकिन अब इस फूल के देने के बाद तो मेरी मोहब्बत और भी बढ़ गई है। उसकी बात पर मैं घबरा गया, हैरान भी हुआ कि ये एक ऐसा अमल है। यूं कई साल गुजर गए। फिर 3 साल बाद मैं एक आमिल बन चुका था और फिर एक दिन वो जिनसात आमिल कहने लगा, अब तुम अपनी दुनिया में जा सकते हो, लेकिन याद रखना जो काम मैंने तुम्हें सिखाया है वो किसी की बुराई के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बल्कि तुमने सब अच्छा काम करना है। और अगर हमारे जिन्नात को अपना गुलाम बनाने की कोशिश की तो मैं सारे अमलियात छीनने की भी ताकत रखता हूँ। वो जिनसात आमिल उस शाह आमिल से कई गुना ताकतवर था। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और उनसे वादा भी किया कि मैं हमेशा उनकी इस बात को याद रखूंगा। मैं कभी किसी अमल से दूसरी मखलूक को तकलीफ या नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आज मैं हमेशा के लिए उस जिन्नात की दुनिया से बाहर अपनी दुनिया में जा रहा था। मेरा हुलिया बहुत चेंज हो गया था और मैंने आज तक अपना चेहरा आईने में भी नहीं देखा था। न जाने अब मैं कैसा दिखता हूँ। मैं एक आमिल बन चुका था उस जिनसादी की मदद से। फिर जब मैं उससे जुदा होने लगा तो उसकी आंखों में आंसू थे। फिर मैंने उससे कहा कि मैं उससे मुलाकात करता रहूंगा और वो भी मुझे या अपने आप को अकेला न समझे। उसका जब दिल चाहे वो मुझसे मिलने आ सकती है। ये सुनकर वो खुश हो गई थी। फिर उसने मुझे अलविदा कह दिया और मैं वापस अपनी इस दुनिया में आ गया जिसे मैं छोड़ कर गया था। फिर मैंने अपना एक आस्ताना बना लिया। उस दिन जब मैं इतने सालों बाद गांव में अपने घर वालों से मिलने गया तो सब मुझे देखकर हैरान रह गए थे। अब्बा कहने लगे, वो शाह आमिल तो एक बार घर आया था। उसने कहा था कि तेरा बेटा मेरे आस्ताने से फरार हो गया और वो बहुत आवारा हो गया है और नाफरमान भी। वो मेरी कोई बात नहीं मानता।
इसलिए मैंने उसे आस्ताने से निकाल दिया। फिर मैं अब्बा से कहने लगा कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, अब मैं शाह आमिल का मुकाबला कर सकता हूँ। जो जो उसने मेरे साथ किया, जब मैंने अब्बा को हकीकत बताई तो वो हैरान रह गए थे। वो कहने लगे, ये तो मैं जानता हूँ कि वो मुअक्कल जिन्नात के जरिए अपने सारे काम करवाता है, लेकिन अंदर से उसका दिल इतना शैतान सिफ्त होगा, ये बात मैं नहीं जानता था। अब मैं अपने आस्ताने पर चला आया था। जब मैं लोगों की मदद करने लगा, उनके छोटे छोटे काम करने लगा, तो जल्द ही पूरे शहर में मेरा एक नाम और एक धूम मच गई। और सब कहते हैं कि एक शहर में नया आमिल आया है जो बहुत ही मेहरबान और हमदर्द है और सबका काम करता है और किसी से पैसों का तकाजा भी नहीं करता। लेकिन अक्सर ही लोग मुझे खुशी से पैसे देकर चले जाते थे। जो धीरे धीरे ये बात सबको पता चली तो एक दिन कुछ लोग जबरदस्ती मेरे आस्थाने पर आए और मुझे धमकी देते हुए कहने लगे, चल अपना धंधा बंद कर दे, अब बहुत हो गया। तू जानता नहीं, पूरे शहर के लोगों की जुबानों पर शाह आमिल के नाम का चर्चा रहता है और वही इस शहर का आमिल है। तू यहाँ पर नया है, इसलिए इज्जत से ये शहर छोड़कर चला जा, वरना तेरा बहुत बुरा हशर होगा। मैं उनकी धमकियों से हरगिज न डरा और उनसे कहने लगा, इज्जत और जिल्लत देने वाली सिर्फ अल्लाह की ज़ात है और मैं इस बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मैंने इस अमल को सीखने में कई साल लगाए हैं। मैं हरगिज इस शहर को छोड़कर नहीं जाऊँगा। फिर उस रात मैं अपने आस्थाने से घर की तरफ जा रहा था, जब अचानक बीच रास्ते में दो आदमियों ने मुझे जबरदस्ती पकड़ लिया। अब वो मुझे घसीटते हुए न जाने कहाँ लेकर जा रहे थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि मेरे साथ जिन्नात की ताकत है। जैसे ही वो मुझे लेकर जाने लगे, अचानक उनके सामने बहुत बड़ी तादाद में लोग आकर खड़े हो गए। उनके खौफनाक चेहरे देखकर वो दोनों मुरीद चीखें मारते हुए वहां से भाग गए थे। मैंने उन जिन्नात का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने मुझे बचा लिया था। फिर वो जिनसाद कहने लगा, हमें उसी जिनसादी ने भेजा है जो हमेशा से ही तुम्हारे पीछे है, और उसी ने कहा कि तुम आज मुश्किल में गिरफ्तार हो। आगे भी जो भी तुम्हें मदद की जरूरत पड़ेगी, हम तुम्हारे साथ होंगे। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। अब तो मैं मजबूती से अपने कदम जमा कर इस शहर में काम करने लगा था। मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं था। हमने एक दिन में अपने आस्थाने पर बैठा था जब एक औरत एक नौजवान लड़की को लेकर आई। उसकी हालत बहुत बुरी लग रही थी। उसकी आंखें सुर्ख, बाल बिखरे हुए, वो शदीद बीमार लग रही थी, लेकिन वो लड़की बला की खूबसूरत थी। फिर उस औरत से मैंने पूछा कि इसके साथ क्या हुआ है, तो वो रोते हुए कहने लगी, अरे आमिल साहब, मैं क्या बताऊं, मेरी बेटी के ऊपर जिन्नात का साया हो गया है। ये कॉलेज में पढ़ती है। एक दिन इसकी सहेलियां उसे इस हिस्से की तरफ ले गईं जहां पर सिर्फ वीराना है। वहां पर कोई लड़की थी ही नहीं। उसकी सहेलियां तो भागकर वापस आ गई, लेकिन ये वहां गिरकर बेहोश हो गई थी। इसके कॉलेज की इंतजामिया ने मुझे इतला दी तो मैं ही उसे लेने गई थी। मेरी बेटी बेहोश पड़ी थी। फिर मैं उसे घर ले आई। इसे शाम को होश आया, लेकिन तब से अब तक इसकी यही हालत है। सब कह रहे हैं कि इस पर किसी जिन्नात का साया हो गया है। आप इसे देखकर बताएं कि ये हकीकत है या नहीं। अब मैंने उस पर खास अमल करना शुरू किया। मैं जानना चाहता था कि इस मासूम लड़की के साथ क्या मामला है। वो आंखें बंद करके ऐसे बैठी थी जैसे उसे कुछ होश ही ना हो। बाल बखेरे, घुटनों में मुंह छुपाए, वो अपने आप से बेगाना लग रही थी। फिर थोड़ी ही देर में मुझे पता चल गया कि इसके ऊपर किसी जिनसात को छोड़ा गया है। वो जिनसात बहुत ही शरीर है जो जानबूझकर खौफनाक हरकतें करके उससे परेशान कर रहा है, लेकिन ये दिन रात किसी ने अमल के जरिए उस पर छोड़ा था। फिर मैं उस औरत से पूछने लगा, क्या आपकी बेटी का कहीं से कोई रिश्ता वगैरह आया था? तो वो सोचते हुए कहने लगी, हाँ, मेरी नंद के घर से उसका रिश्ता आया था, लेकिन मेरी बेटी बहुत खूबसूरत है और उसका बेटा आवारा नशई है। मैं भला अपनी बेटी की शादी उससे कैसे कर देती? तो फिर मैं उस औरत से कहने लगा, जहाँ तक मुझे लगता है कि उसी औरत ने तुम्हारी बेटी के ऊपर कोई अमल करवाया है, जिसकी वजह से वो जिन्सात उसे परेशान कर रहा है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मेरा राब्ता बड़े बड़े जिन्नात से है। मैं इस लड़की का उस जिन्सात से पीछा छुड़वा दूंगा। ये सुनकर औरत बहुत खुश हो गई थी, वरना वो बहुत परेशान हो रही थी कि उसकी बेटी के साथ क्या हुआ। फिर वो काफी दिन तक उससे मेरे पास लेकर आती रही। आखिर उसकी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई। एक दिन वो औरत मिठाई लेकर आई और कहने लगी, आमिल साहब, आपने हमारी इतनी मदद की, आप नजराना भी नहीं लेते, इसलिए ये मिठाई कबूल करें। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और वो मिठाई खा ली। फिर एक दिन जब मैं अपने घर जा रहा था, तब बीच रास्ते में मेरी मुलाकात उसी जिनसाती से हुई। वो आज मुझे कामयाब देखकर बहुत खुश हुई थी। फिर वो मुझे कहने लगी,
यकीनन तुम्हारे वालिद साहब तुम्हें एक आमिल के रूप में देखकर बहुत खुश होते होंगे, क्योंकि तुमने उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी। मैं मुस्कुराते हुए उससे कहने लगा, ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है। ना तुम मेरी जिंदगी में आती और ना ही ये सब मुमकिन होता। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराती थी, फिर कहने लगी, आज मैं अपने बाबा के साथ उसी जजीरे पर जा रही हूँ, क्योंकि मैं भी उनकी तरह एक बहुत बड़ी ताकतवर जिनसाती बनना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे बाबा का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। मेरे साथ भी ताकतें होंगी तो फिर कोई शैतान आमिल मुझे अपने पास कैद नहीं कर सकेगा। मैं उससे कहने लगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने एक अच्छा फैसला किया है। फिर मैं उससे कहने लगा कि अगर मुझे जिंदगी में तुम्हारी जरूरत पड़ी तो क्या तुम मुझसे मुलाकात करने आओगी, क्या तुम मेरी मदद करने आओगी? तो वो कहने लगी कि क्यों नहीं, तुम हमेशा मुझे अपने साथ पाओगे। उसकी बात सुनकर मैं खुश हो गया था। फिर उसने मुझे अलविदा कह दिया। अब मैं घर आ गया था। फिर दूसरे दिन अम्मा कहने लगी कि मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद कर ली है जो बहुत खूबसूरत है, बहुत पढ़ी लिखी और मासूम। तुम्हारे साथ उसकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। मैं अम्मा से कहने लगा कि मुझे एक दीनदार और शरीफ लड़की चाहिए। अम्मा कहने लगी, वो लड़की भी बहुत शरीफ है, क्योंकि घर में मेरी शादी की तैयारियां होने लगी। मैं अपना काम कर रहा था। फिर मैंने गरीब और मासूम बच्चों के लिए एक स्कूल बनवाना शुरू किया, क्योंकि मैं जल्द ही ये आमिल अमलियात का काम छोड़ देना चाहता था, क्योंकि मैं ये समझता था कि इन सब में कुछ नहीं रखा। हाँ, मैं लोगों की ऐसे ही मदद करता रहूंगा, लेकिन सिर्फ ये उस वक्त जब मैं फारिग होऊंगा, वरना मैं पूरी तवज्जो उसी स्कूल को देना चाहता था जो गरीब बच्चों के लिए मैं बनवा रहा था। फिर मेरी शादी का दिन भी आ गया। दुल्हन लाल जोड़े में मलबूस थी, जिसे मैंने अभी तक नहीं देखा था, क्योंकि सुहाग रात में ही मैं उसे देखने वाला था। फिर जैसे ही मैंने लड़की को देखा तो मैं हैरान रह गया था। ये लड़की तो इलाज करवाने के लिए मेरे पास आई थी। इसका नाम बरीरा था। वो निहायत ही खूबसूरत और कम उम्र थी, और मुझसे आधी उम्र की भी। मैं हैरान हुआ कि अम्मा ने मेरे लिए इतनी छोटी लड़की का इंतखाब क्यों किया है, जबकि ये लड़की तो बीमार भी रह चुकी है। न जाने किसी और को नापसंद करती हो, क्योंकि उसके चेहरे पर बहुत उदासी थी। क्या तुम किसी और से शादी करना चाहती थी? फिर मुझसे सब्र नहीं हुआ तो मैंने उससे ये सवाल पूछ लिया। उसने झटके से सर उठाया था और फिर रोना शुरू कर दिया। उसके रोने से मैं परेशान हो गया था। फिर वो रोते हुए कहने लगी, पहले ही सब लोग मुझे एक आसेब सदा लड़की कहते हैं। कोई भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि मुझ पर एक जिनसात का ठप्पा लग चुका था। लेकिन जब आपकी अम्मा रिश्ता लेने आई तो मेरे माँ बाप ने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। तो आपकी अम्मा कहने लगी कि मेरा बेटा तो इन अमलियात का माहिर है, उसके साथ नेक जिन्नात की ताकत है, वो सारे मामले हल कर देगा। फिर मेरी अम्मी कहने लगी कि ये अब उस जिनसात की कैफियत से आज़ाद हो गई है, क्योंकि वो उसके ऊपर हावी था, लेकिन हमने इसका इलाज करवाया तो अब ये बिल्कुल ठीक हो गई है। यूँ उन्होंने मेरा रिश्ता तय कर दिया था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि आप आज मुझ पर यूँ इल्ज़ाम लगा देंगे। मैं उसकी बात सुनकर हंस दिया था। मैं उससे कैसे बताता कि इतनी खूबसूरत लड़की मेरी जिंदगी में शामिल हो गई है, तो मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने उस लड़की को अपना लिया। वो बहुत समझदार और सलीकाशार थी। उसने पूरे घर को संभाल लिया था। फिर एक दिन जब मैं अपने स्कूल का इफ्तिताह करवाना चाहता था, मैंने अपने अब्बा को अपने साथ लिया, क्योंकि मैं अब्बा के हाथों से स्कूल का इफ्तिताह करना चाहता था। फिर उस दिन मैं घर की तरफ जा रहा था, जब रास्ते में मुझे भटकता हुआ एक आदमी नजर आया। मैं हैरान था कि ये आदमी कौन है जो पागलों की तरह गलियों में घूम रहा है। मैंने उससे रोककर पूछना चाहा कि वो आधी रात को यहाँ सड़क पर क्यों भटक रहा है, लेकिन जैसे ही मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ी तो मैं हैरान रह गया। ये तो शाह आमिर था, जो आज पागलों की तरह सड़कों पर घूम रहा था। मुझे उसकी हालत देखकर बहुत अफसोस हुआ। फिर मैंने उसका इलाज करवाने के लिए उसे अस्पताल में दाखिल करवा दिया। लेकिन कई महीने बाद जब मेरी मुलाकात उसके एक मुरीद से हुई तो मैंने पूछा कि उसका हाल कैसा है, तो वो कहने लगा कि उसकी बीवी ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। वो उससे अपनी जान छुड़वाना चाहती थी, क्योंकि इसकी वजह से उसकी जिंदगी अजाब में फंसी हुई थी। ये उस औरत को छोड़कर जिन साथियों के पीछे पड़ा था और उन्हें अपनी कैद में करके खुशी महसूस करता। हर रोज किसी न किसी जिनजादी से ये शादी करता था और उसके साथ सुहाग रात मनाता। यही वजह थी कि उसकी बीवी को इससे नफरत हो गई और नफरत में आकर उसने इसके साथ ये सब किया। मुझे उसका हाल जानकर बहुत अफसोस हुआ था। सच कहते हैं, जो दूसरों के साथ बुरा करता है तो खुदा उसके साथ भी इंसाफ से काम लेता है
اور آج शाह आमिल अपने अंजाम को पहुंच चुका था, लेकिन फिर भी मैं दुआ करता था कि वो जल्द ठीक हो जाए ताकि खुदा के आगे अपने गुनाहों की माफी मांग सके। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको दहशतनाक दिल को जकड़ देने वाली कहानियां पसंद है तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।